Suppose you have selected a college called as IIT Mumbai. Okay. Now think about a class 12 child. What question can he have in his mind related to IIT Delhi? What are the courses offered by IIT Delhi? What is the placement of IIT Delhi? How to enter into IIT Delhi? What exams you have to give? Okay, then you can have whether there is hostel or not, whether the sports facilities, maybe how old is the college, convenient, anything. These 4, 5 questions generally we have whenever we are thinking about a college, only 5, 6 questions, and maybe ranking of that college in terms of the course which you are thinking. Suppose I'm thinking about IIT, so they run mainly BTech, BBA, maybe BSc, maybe MBA also, some of the colleges. I don't know how many of you know that some of the IIT run BSc also, BBA also, BTech also. When you will do research, you will get to know. Okay. Now, if you think about BTech, it is best. Number one or number two of India. When you talk about BBA, it can be fourth or fifth or eighth, maybe somewhere beyond 10. You cannot have exact number, but you can say that it is not in top 10, it is not in top 5. That's okay. That is okay, because the rankings given by different institutes, different research, you will find different. Somebody say IIT Mumbai is number one, somebody will say IIT Delhi is number one. But at least while your research, you will come to the conclusion IIT Delhi is one of the top 3 colleges of BTech in India. That conclusion you can come up with. You cannot be very specific, it is number one or number two, but you can be this much of. So same way, this type of research you have to do with the college. Now, when you come to the any exam, now what are the questions a person can have related to exam? When this exam? Why this exam? Which courses you have to go through this exam? Which colleges you have to go through with this exam? How many questions are there? What is the syllabus in NCERT, or suppose there is a mathematics till class 10, till class 10, till class 8 or not, whatever. So that can be syllabus. Then there can be a question like either whether there is negative marking or not. What is the generally marks on the basis of which generally per year admission takes place? Suppose you talk about NEET, so anybody can say 650, 670, 680 is the mark which you have to take to get a good government college. So that basic, if you are talking about IIT, 160, 170, 180 is the marks generally people take. So that was basic. Basic. If you are talking about CUT, to go to Delhi University and all, you need at least 750, 760 to get into a good college. So that research you have to do about exam. Now we have done with the college, we have done with exam. Now course. Now BCom honors. What is BCom honors? What is the eligibility of BCom honors? What are the good colleges in India, top 10 colleges in India which are offering good BCom honors? What are the top 10 government colleges which are offering BCom honors? What career options we can think after doing BCom honors? So that type of query generally a class 12th bacha have related to a course. If I'm not getting BCom honors, what can be the substitute course for BCom honors? Because I can do BCom honors. If I'm not able to get good college, I can go for BCom or BA economics. So that can be a person who is thinking about BCom honors cannot think about BTech. A person who is thinking about BTech can think about BE, Bachelor of Engineering. So that can be 2 substitute courses. But for BCom honors, BBA or Eco honors, these can be the substitute courses. If I'm not getting BBA, I can go for BMS or BCom honors or Eco honors. These are the 3, 4 substitute courses. So same way, if I'm thinking about MA mathematics, maybe if I'm not getting good college, I can think about MA statistics. MA statistics or BA mathematics and BA statistics. So these are the substitute courses. So that is the thing which a bacha have in the mind while selecting a course, a college or exam. The same answers you should have. So first of all, you have to assume why I have taken class 11th and 12th bacha. Reason, you yourself have to think what questions I have in my mind while selecting a college or course or exam. If you come to that questions, first make your questionnaire. Or not, I do not want 100 questions. Please, 8, 9, 10. Try to be not more than 10. Try to have.
10 questions first in your mind. Suppose you are thinking about IPM course of IIM Indore course. Now, IPM course is IPM. Which colleges offer IPM? Then, what entrance exam I have to give to go for IPM? What career options are there after IPM? Then, if I'm not getting IPM, what can be the substitute exam? So then you can think about BMS or BBA doing from Delhi University or something. So that think about 4, 5, 6, 7, 8 questions. And these questions should be unique, your question. I do not want what questions Arusa is making and what question Pritesh is making, what question Sanabi is making and what question Ria is making. Your questions, and your questions should be that you have to reach. I don't know how many of you know about game theory. Game theory says that you have to think what other people are thinking. You have to imagine what other people are thinking. That you have to imagine. एंड यू हैव टू थिंक कि हाँ, दोज बच्चा जो 12वीं क्लास में है उनके मन में क्या क्वेश्चन होंगे। सीयूटी है, सीयूटी कब होता है, कितने मार्क्स का होता है, कितने पेपर देने होते हैं, कहाँ इसका फॉर्म मिलता है, इसका सिलेबस क्या होता है, दैट यही क्वेश्चन होते हैं ना लोगों के मन में, यही आपके मन में आना चाहिए। तो जितना आप एंड बट अगर आप 10 क्वेश्चन के बियॉन्ड जाते हैं तो फिर आप बहुत डिटेल में चले जाएंगे, फिर आपका काम नहीं होगा। जो हमारा अगला स्टेज है उसको कंपाइल करना है, उसको प्रेजेंट करना है, वो हो नहीं पाएगा उस टाइम पीरियड में जो टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा। तो आपको वो 10 क्वेश्चन आपको सोचने हैं जिसको आप 2 मिनट 2.5 मिनट में, आपको अगर बोलने को कहा जाए तो आप पूरा बोल लेंगे। वो आपको सोचना है, पहले क्वेश्चन सोचना है फिर उसके आंसर पे जाएंगे। समझ में आ गई बात आप लोग को? क्लियर है? यस सर। ठीक है, और बताओ कि इसके मन में क्या क्वेश्चन है, एनी वन ऑफ यू? सर मतलब इन अ वे हम लाइक वी आर काइंड ऑफ डूइंग करियर काउंसलिंग, मतलब गाइडेंस ही कर रहे हैं ना, लाइक अबाउट व्हाट टू डू आफ्टर 12th। व्हाट टू डू आफ्टर 12? हमारा क्या है, हमारा टॉपिक क्या था? इंटर्नशिप। पहली बात तो आपको इंटर्नशिप का मतलब पता है क्या होता है? व्हाट एनी वन कैन टेल मी व्हाट इज इंटर्नशिप? इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है? हम क्या करते हैं इंटर्नशिप में? यस आरुष? सर ये एक लाइक इंट्रोडक्टरी जॉब टाइप होता है जिससे हमें एक्सपोजर मिले वर्क एथिक और वर्क कल्चर के बारे में, जो हमें लाइक सिखा सके चीजें आगे वर्क प्रोफेशन में। ठीक है, ये तो आपके लिए हो गया। वाई कंपनी विल डू इंटर्नशिप? कंपनी को क्या मिलेगा भाई? इंटर्नशिप तो आपको मिलेगा, ठीक है जी। आप तो कुछ पैसे देते नहीं है कंपनी को, फिर भी वो आपको। कंपनी इसलिए इंटर्नशिप देता है ताकि दे कैन ग्रूम यू। एक एक मोल्ड होता है जो परफेक्ट एम्प्लॉय टाइप का, एक मोल्ड होता है, तो उसमें फिट कर सके, उतने नेसेसरी स्किल्स बढ़ सके कि आप फ्यूचर में जाके उस कंपनी को सर्व कर सको उसी एथिक्स पे, उसी स्किल्स के बेसिस पर जो लेकिन कंपनी आपको सिखाता है। लेकिन ये तो है नहीं कि जहां आप इंटर्नशिप करेंगे वहीं जॉब करेंगे। इंटर्नशिप आप कहीं और करके जॉब कहीं और करने चले जाएंगे, फिर कंपनी आपके ऊपर मेहनत क्यों करेगा? यस प्रीतिश? सर क्योंकि कंपनी को एक ह्यूमन रिसोर्स चाहिए एक्सीलेंट। टू है। गॉट इट, गॉट इट, मेरे पसंद, ठीक है, वेरी गुड। कंपनियों के पास छोटे छोटे से प्रोजेक्ट आते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। उस प्रोजेक्ट के लिए वो परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं रखते हैं, उनका एक परमानेंट एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अब उनके पास कोई प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट में उनको 10, 20, 50, 100 लोगों की जरूरत है आज, जिनसे उन्हें काम करवाना है। तो आपके लिए प्लस पॉइंट क्या होता है? यू विल गेट द एक्सपोजर, यू विल गेट द लर्निंग, यू विल गेट द वर्क एथिक्स, यू विल गेट द एनवायरमेंट, एंड कंपनी विल गेट इट्स वर्क डन थ्रू यू। आपको एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं। सेम वे व्हेन यू ज्वाइन एडुट्री, I'm telling you very clearly, there is no if but. When you join EduTree, there is some gain to me, to my company, and some gain to you. It is not some classes which you have joined and somebody is going to teach you something like that. There is win-win situation for both of them. What is win-win situation? That you are going to get the platform, you are going to get something for your resume, you are going to get the exposure, you are going to get the learnings, and कल को आपको अपने लिए भी कॉलेज ढूंढना है तो उसमें भी बेनिफिट हो जाएगा। दिस इज योर थिंग। वी आर वर्किंग
ऑन अ वेबसाइट, वी आर वर्किंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम लोग, अगर आपने कभी एडुट्री के वेबसाइट देखा हो तो उस पे हम लोग उसमें एक इंजन डेवलप कर रहे हैं, जिसमें अगर आप बीकॉम डालोगे या बीबीए डालोगे, अभी वो डेवलप नहीं है, आपको वहां नहीं मिलेगा, हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। तो जैसे आपने बीकॉम डाला, आपके मन में कोई बच्चा तो वो जैसे बीकॉम डालेगा तो बीकॉम के इंडिया में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन सी रैंकिंग है, क्या होता है, ये सारी चीजें उसको निकल कर आएगी। वी आर वर्किंग ऑन दैट, एंड फॉर दैट प्रोजेक्ट यू ऑल हैज बीन हायर्ड। आपको मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर आप काम ही नहीं करोगे तो हमारे किसी काम के नहीं है, और फिर हम आपके साथ मेहनत क्यों करेंगे, नहीं करेंगे प्लीज। तो इसमें मतलब कोई मतलब एक बट नहीं है, ये एक काम है, ये आपका स्कूल नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया और अब हमें तो आपको सीबीएसई का एग्जाम दिलवाना पड़ेगा, ऐसा हमारे साथ कोई बाउंडेशन नहीं है। वी वॉन्ट वर्क, वी मीन बिजनेस, सिंपल सा कंसेप्ट है, वी आर वर्किंग। मैं आपको सिखाऊंगा, आपकी लर्निंग होगी, दैट इज माई प्रॉमिस, and the internship certification from EduTree will be ISO certified, MSME registered। आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर ISO का लोगो होगा, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSME का लोगो होगा, वो आपके काम का सर्टिफिकेट होगा। आप कहीं पे भी जाके कह सकते हैं। बहुत सारे लोग इंटर्नशिप कराते हैं, उसमें क्या करते हैं, सेशन, किसी ने हमारे लास्ट फाइनेंशियल लिटरेसी की इंटर्नशिप किया था? एनी वन ऑफ यू है कोई ऐसा? नहीं है। तो हमने लास्ट टाइम भी हमने एक इंटर्नशिप किया था जिसमें हमने फाइनेंशियल लिटरेसी, तो हमने वहां पे बच्चों से स्टॉक मार्केट का रिसर्च करवाया था। बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक पे रिसर्च किया था, उस रिसर्च को हमने कैसे यूज किया वो हमारा काम है। लेकिन आपका जो रिसर्च है, आपकी जो लर्निंग है, वो अलग चीज थी। तो आप एक काम करते हैं, उस पर करते हैं। अभी हम हर समर में हम स्टॉक मार्केट की इंटर्नशिप करते हैं, हम कुछ शेयर्स देते हैं और हम करते हैं। अगर आप में से कोई ठीक निकला और हमें लगा कि आपको हमें आगे करना है, तो हम जरूर आपको उसमें भी ऐड करेंगे, सो दैट कि इफ एनी वन ऑफ यू हैव इंटरेस्ट इनटू द स्टॉक मार्केट, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। बट ये तो डिपेंड करेगा कि आप इसमें कैसा करते हैं। अगर आप इसमें ही अच्छा नहीं करते तो फिर ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हम इस प्रोजेक्ट को लेकर आएंगे और ये प्रोजेक्ट आएगा। 50 लोग हो, हम लोग के 7 दिन है। मेरा ये मान के चलना है कि 50 × 7 350 होता है। तो 350 आउटपुट्स मेरे पास आने चाहिए। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो फिर दिक्कत है। आपका सर्टिफिकेशन, आपको एज ए लीडर सर्टिफिकेट मिलेगा, एज ए पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट मिलेगा, कंप्लीशन, पार्टिसिपेशन। तो जब व्हेन यू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ अ लीडर achiever, that certificate means something different as compared to a certification of participation और कंप्लीशन। तो ये डिफरेंस होता है जब भी आप किसी के सामने रखोगे, कभी एडमिशन के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे, परसों को जॉब के टाइम पे, तो उसका डिफरेंस आएगा आपकी लाइफ में, पक्का आएगा। तो सब कोई लीडर नहीं हो सकता, नो डाउट। बच्चे के अंदर क्वालिटी होती है। कई बार मेरे से बच्चे पूछते हैं, सर उसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया। किसी को कोई कुछ नहीं करता लाइफ में। आप कितना आगे पढ़ेंगे, कितना आगे जाएंगे, ये आपकी डेडिकेशन, आपकी हार्डवर्क पे डिपेंड करता है, और किसी बात पे डिपेंड। कभी भी डू नॉट कंपेयर कि उसने क्या किया। आप देखो कि आपको अगर कोई चीज नहीं मिलेगा, मैं भी जरूर बता रहा हूँ, यू हैव टू डिसाइड कि मुझे ऐसा मैंने क्या किया जो मुझे नहीं मिला, मैं आगे इसको कैसे अपनी लाइफ में बेटर करूँ। आज आप मेरे साथ हो, कल आप किसी और के साथ होगे, किसी और कंपनी में होगे, किसी और जॉब में होगे। देयर यू हैव टू डू इट। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ बेटर करना है, कुछ यूनिक करना है, कुछ डिफरेंट करना है, वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है? यस जस्टिन सेबेस्टिन, जस्टिन सेबेस्टिन, प्लीज, यू वांट टू से समथिंग? अनम्यूट योरसेल्फ। Sir, I have a doubt. यस, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Finally, ये yes, बताइए। sir. Can you या आई कैन, can you hear me, sir? या आई कैन हियर यू। So finally, so for the certificate, sir, do you have to pay anything or is the certificate free? हम, हमारे फाउंडेशन है, आई डोंट नो यू हैव, इसका मतलब ये है कि आपने हमारे बारे में बिल्कुल रिसर्च नहीं किया। हम फाउंडेशन चलाते हैं, हमारे फाउंडेशन में हम कोई पैसे नहीं देते, निश्चिंत रहे आप इस बारे में। आपके टीचर आपको, आपके टीचर, हमने कभी आपको कांटेक्ट नहीं किया होगा, आपको आपके टीचर ने हमारा लिंक दिया है। और टीचर ऐसे कभी किसी कमर्शियल वेंचर के लिंक नहीं देते, अगर देते हैं तो गलत करते हैं। तो वी आर रनिंग एडुट्री फाउंडेशन विच इज वर्किंग फॉर द सोसाइटी। तो हम आपसे कोई पैसे नहीं देने वाले, डोंट वरी अबाउट दैट। हमारे कुछ और वेंचर है जहां हम पैसे देते हैं, वो हमारा अपना काम है। जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं तो हम आपसे कोई पैसे नहीं देते।
एनीथिंग एल्स इन योर माइंड, प्लीज डू आस्क। हो सकता है ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके मन में हो। यस सोनिका, बोलो बच्चा। सर मैंने दो कोर्सेज चूज किए हैं, बीकॉम और होटल मैनेजमेंट। उसमें एग्जाम का मैंने सीयूटी चूज किया है, पर वो दोनों के लिए चलेगा क्या एग्जाम्स? मतलब बीकॉम और होटल मैनेजमेंट दोनों के लिए एक एग्जाम का रिसर्च किया तो चलेगा क्या? अगर आपने ऐसा रिसर्च किया है तो आपके रिसर्च गलत है, बिकॉज होटल मैनेजमेंट के लिए जो एग्जाम होता है उसका नाम है NCHM JECET। मैं रिपीट कर रहा हूँ, NCHM JECET ये एग्जाम है, पूसा कंडक्ट करवाती है। इसका मतलब आपके रिसर्च सही नहीं है, ठीक है। होटल मैनेजमेंट का जो इंडिया का एग्जाम है उसे हम कहते हैं NCHM। तो प्लीज, और बीकॉम के लिए आपने सर्च किया तो वो आपका एग्जाम जो है वो CUT है, नो डाउट। दूसरे कुछ जगहों पे बीकॉम के लिए भी डिफरेंट एग्जाम होता है, लेकिन मेन एग्जाम जो इंडिया में बीकॉम के लिए होता है वो CUT है, ठीक है। इसी से पता चलेगा कि आप लोग कितना रिसर्च कर रहे हैं, बिकॉज मेरे पास तो ये सारा रिसर्च है। मैं आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, आई एम अ करियर काउंसलर। मैं 20 साल से करियर काउंसलिंग करता हूँ। पहले मैं स्कूल में था तब वहाँ करता था, अब मैं कंपनी को ज्वाइन किया है तो मैं यहाँ करता हूँ। तो हम लोग, तो इसलिए आप डेटा देंगे तो हमारे पास वो डेटा पहले से है। तो जब भी आप रिसर्च करेंगे, जब आपको 23 तारीख को शाम को बताया जाएगा, यू विल बी सेंडिंग सम डेटा। आपके हमारी तरफ से आएगा अप्रूव, दो ही वर्ड आएगा, अप्रूव्ड एंड नॉट अप्रूव्ड, दो ही वर्ड आएगा, तीसरा कुछ नहीं। आपको हम कभी नहीं बताएंगे गलती क्या है। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको जब डेटा मांगा जाएगा, यू विल बी गिविंग द डेटा, और उस व्हाट्सएप एक मैसेज आपकी तरफ से आएगा, व्हाट्सएप एक मैसेज हमारी तरफ से जाएगा। आपकी तरफ से मैसेज आएगा जो आपने रिसर्च किया होगा। मैंने कहा 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, विजुलाइज करना है। जैसे आपने कहा कि SRCC, SRCC इज one of the best commerce college of India. It runs two program called as BCom Honors and Eco Honors. BCom Honors and Eco Honors programs of SRCC is the most sorted. To reach to these programs, you have to appear for CUT. Generally, 800, 797, sorry, 790 or 792 is the marks required to reach the SRCC. The placements of SRCC is around 8 to 10 lakh पर एनम, इट इज द एवरेज प्लेसमेंट। ऐसे 5 लाइन आपने लिख के दे दिया। अब दे दिया, दैट मीन्स यू मस्ट हैव थॉट कि हाँ इस कॉलेज कहाँ है, कौन से कोर्स कराता है, इसमें एडमिशन कैसे होता है, इसका प्लेसमेंट क्या है। इस तरह से ये आपके मन का क्वेश्चन है जिसका आपने 5 लाइन लिखा है, और यू विल बी सेंडिंग दैट व्हाट्सएप मैसेज टू अस। हमारी तरफ से अगर उस पर दिख गया अप्रूव्ड, इसका मतलब वो सही है और आप उससे आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट टास्क पे जा सकते हैं। अगर लिखा नॉट अप्रूव तो इसका दो तरीका, दो कभी, या तो आपके रिसर्च का कंटेंट में कुछ कमी है, कुछ और डालना है, या कंटेंट में कुछ गलती है। दैट मीन्स यू हैव टू गो थ्रू मोर वीडियोज। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जो आपकी रील देखने की हैबिट है वही आपका जॉब है इस बार, वही आपका काम है। आप सब इंस्टाग्राम पे बहुत रील देखते हैं, और आपको अब काम करना है कि रील ही देखना है, आपको वीडियोज ही देखना है 7 दिन तक। इस काम से आप उब जाएंगे, इतना काम आपको दिया जाएगा कि आपको वीडियोज देखना है। जैसे ही मैंने कहा SRCC नॉट अप्रूव्ड, इसका मतलब अब ऑल अबाउट SRCC, ये आपको इंस्टाग्राम पे, सॉरी नॉट इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जाके लिखना है ऑल अबाउट। और फिर 2 4 5 7 8 और वीडियोस देखोगे। जब आप 8 वीडियो और देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये मैंने लिखा था, ये 8 वीडियो में से एक और नई चीज निकल कर आई जो मैंने अपने पहले वाले कंटेंट में नहीं डाला था। या मैंने ये कहा था कि हाँ जी इसको वहां पे एडमिशन बीकॉम ऑनर्स और इको ऑनर्स होता है, लेकिन यहाँ पे तो एक और कोर्स है जिसका नाम है PG डिप्लोमा इन ग्लोबल मैनेजमेंट। ये कोर्स है जो मैंने नहीं डाला था, हो सकता है इसके लिए डिसअप्रूव्ड लिख कर आया हुआ। तो फिर वो आप उसको ऐड करके फिर भेजोगे, और हो सकता है हमारी तरफ से अप्रूव्ड लिख के आ जाए। समझ में आ रही बात? तो ये आपको ध्यान है। समृद्धि, योर क्वेश्चन प्लीज। So, what would be the deadline for this? एवरी डे यू विल बी रिसर्चिंग वन मोर थिंग। किसी दिन, मैं फिर बता रहा हूं, यू विल बी गिवन ओनली द थीम। सपोज यू आर गिवन थीम टुडे। मैंने ये तो आपको एक आज दो दो करो, रिसर्च करो, क्या करो, ये आपको इसलिए दिया ताकि उस दिन पे आके आपको अचानक से न लगे क्या हो गया, कितना टाइम लग रहा है। अब आपको एक हफ्ते करीब पहले से मैंने ये काम इसलिए दे दिया था, सो दैट कि आपको ये पता चल जाए कि इस रिसर्च में आपको कितना टाइम लग रहा है। अब आप 23rd को जब ज्वाइन करोगे, और 24th को ज्वाइन करने से पहले आपको दो कॉलेज, एक कॉलेज कोई थीम दिया जाएगा। आज थीम है कॉलेज,
और क्या थीम है? इंजीनियरिंग कॉलेज। तो अब आपको इंजीनियरिंग कॉलेज सोचना है, क्या सोचोगे? बिट्स पिरानी हो सकता है, आईआईटी दिल्ली हो सकता है, आईआईटी मुंबई हो सकता है, वीआईटी हो सकता है। तो जो उस दिन का थीम होगा, उस थीम पे आपको रिसर्च करनी है। आप वीआईटी पे कर रहे हैं, कोई बिट्स पे कर रहा होगा, कोई आईआईटी मुंबई पे कर रहा होगा, कोई आईआईटी दिल्ली पे कर रहा होगा। सपोज एक दिन आपको कहा जाता है अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स इन इंडिया रिलेटेड टू, मे बी आपसे मैं कह देता हूँ कि इंजीनियरिंग यही है। तो आप क्या सोचोगे? एक एग्जाम बिट्स पिरानी होता है, एक एग्जाम जेई होता है, एक एग्जाम बिट्स का अपना होता है। तो ऐसे तीन चार ढूंढोगे कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कॉमेट होता है। आप उस एग्जाम को रिलेटेड फिर आप उस एग्जाम पे रिसर्च करोगे। तो थीम विल बी गिवन टू यू। मे बी आपको कहता है मैनेजमेंट एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम, तो आप आईपी मैट होता है, जिप मैट होता है, सीयूईटी भी होता है, क्योंकि उसके थ्रू आप डीयू में जा सकते हो, डीयू का बीएमएस कोर्स में जा सकते हो। मे बी कोई आप और सोच करते हो, जो भी आप ढूंढोगे आपको पता चलेगा कि हाँ जेई भी होता है, क्योंकि जेई के थ्रू आप आईआईटी मंडी में जाके आईपीएम का कोर्स कर सकते हो। तो आप जब आप ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा। तो तो आपको ढूंढ के वो जो थीम होगा, उस थीम से रिलेटेड उस दिन का कोर्स, कॉलेज, एग्जाम, उस थीम से रिलेटेड आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है? तो एवरी डे देयर विल बी थीम, एवरी डे यू हैव टू सर्च द डेटा, एवरी डे यू हैव टू प्रेजेंट द डेटा, एंड नेक्स्ट डे नेक्स्ट थीम, नेक्स्ट डेटा, समथिंग एल्स। होगा क्या? दो का कि दिन, तीसरे दिन आप में से कुछ टीम लीडर बन जाएंगे, जिसको टीम दे दिया जाएगा। आप अपना भी करोगे और फिर दूसरे का चेक करोगे, उसने क्या किया है, उसने कमी की है तो अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव। अगर थर्ड डे के बाद हो सकता है आपको एक नंबर शेयर हो जाएगा आपके साथ, आप उसको भेजोगे। सपोज यू विल बी गिवन अ टीम लीडर, आप उसको भेजोगे, वो आपको अप्रूव नॉट अप्रूव लिख के देगा। फिर वो अगर आपको अप्रूव लिख के देगा, तो फिर आप उसके अप्रूवल लिखने के बाद आप हमारे पास भेजोगे, फिर आगे इम्प्रूव होगा। तो देयर विल बी चैनल इन बिटवीन, बिकॉज मुझे उस पर्सन को ट्रेन करना है जो लीडर है, कि क्या वो उसको चेक करने की क्षमता उसके अंदर बढ़ी कि नहीं बढ़ी। ठीक है? तो इस तरह से प्रोसेस शुरू होगा। यू विल गेट टू नो द प्रोसेस, डोंट वरी अबाउट दैट। क्या होगा आगे, क्या होगा, अभी तो फिलहाल ये है कि करना क्या है आपको पहले ये पता होना चाहिए। कितना टाइम लग रहा है, किसी ने रिसर्च किया कितना टाइम लगता है? अगर सपोज मुझे एक कॉलेज या कोर्स या एग्जाम के बारे में रिसर्च करना है, तो कल लगभग कितनी वीडियो देखनी पड़ रही है आप लोग को? 7 to 8। 7 to 8। 7 to 8 में आपको अगर मिल रहा है तो यू आर नॉट डूइंग। मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम सपोज कोई को जेई देखना है तो कम से कम 25 वीडियो देखनी पड़ेगी, कम से कम। किसी को सीयूटी देखना है तो कम से कम 20 से 25 वीडियो देखनी पड़ेगी। और मैं एवरेज 10 मिनट की भी वीडियो मान के चल रहा हूँ, तो आप 25 वीडियो पे देखो कितना टाइम लगेगा। मैंने शुरू में कहा था 2-2.5 घंटे तो आपको देने पड़ेंगे। अगर आपको याद होगा, फर्स्ट डे आपको बताया गया था कि 2-2.5 घंटे आपको लगेंगे। अमिशी, कुछ क्वेश्चन आपके मन में? इसीलिए हमने इसको विंटर इंटर्नशिप रखा है, ताकि आपकी छुट्टियों के दिन होंगे। नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको मैं आप लोग को भेजूंगा। अगर आपको लगता है 2-2.5-3 घंटे आप नहीं दे पाएंगे, तो आप इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आप किसी स्टेप पे जाके एलिमिनेट हो जाएंगे। आपका 2 दिन की मेहनत बेकार जाएगी। उससे अच्छा है कि आप शुरू में एलिमिनेट हो जाए, मुझे मैसेज भेज देना कि आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू, आई विल बी हैप्पी। क्योंकि बीच में आप छोड़ेंगे तो इट विल बी अ लॉस फॉर यू। Amishi, your question for you, please. Thank you so much, sir. So I have a doubt actually. If we are not able to join your session on 23rd, so there is any supplement No, for that? there is no nothing। कुछ भी नहीं है हमारे पास, कोई ऑप्शन नहीं है ये, क्योंकि 7 ही दिन का है, इसमें इफ बट कुछ है ही नहीं। ये आपको Okay, thank you. प्रीतिश। Yes, sir. So, is there any specific format of content you want in a research report? हमारे एनईपी कहता है क्रिएटिविटी। अगर मैं फॉर्मेट दे दूंगा तो फिर आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। No. मेरे को आपके अंदर की हाउ प्रीतिश रिसर्च, हाउ प्रीतिश थॉट इज डिफरेंट फ्रॉम थॉट्स ऑफ मीट, वही मुझे चाहिए। हो सकता है मैंने 5 क्वेश्चन लिख दिया, आप सबने उस 5 क्वेश्चन का आंसर ढूंढा, फिर तो ये तो स्कूल में आप लोग को कराया ही जाता है ना, यही तो आप लोग को स्कूल में कराया जाता है, ये क्वेश्चन ये आंसर, ये क्वेश्चन ये आंसर। हाउ, जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, जब आप लाइफ में जाते हैं, तो लाइफ में हर इंसान की लाइफ अलग होती है, यानी हर इंसान का अलग क्वेश्चन होता है और हर इंसान का अलग आंसर होता है। सेम हैपेंस इन द इंडस्ट्री। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, पता चलेगा आप एयरटेल में काम कर रहे हैं, आपकी लाइफ कुछ डिफरेंट है, और जैसे ही आप वोडाफोन में गए या जियो में गए, आपकी लाइफ कुछ डिफरेंट होगी।
कस्टमर बेस डिफरेंट होगा, सप्लायर डिफरेंट होंगे, डिफरेंट सिचुएशन आ जाएगी, सबको डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, यस मीत, योर क्वेश्चन प्लीज। Sir, what will be the timings of this internship on 23rd? 8:30 to 9:30 के बीच में ही ज्वाइन करेंगे, जब भी ज्वाइन करेंगे, मीन्स Sir, in day or night? हम इसी टाइम इवनिंग में ज्वाइन करेंगे, 8:30 to 9:30। मेरे Okay, sir. हम ज्वाइन करेंगे उसमें इसी तरह जैसे अभी हम बैठ के बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें करेंगे रोज, 8:30 to 9:30। जब आप रिसर्च करेंगे, कुछ क्वेश्चन आएगा, आपके पास क्वेश्चन आएगा, सर मैंने बहुत रिसर्च कर लिया, यहाँ पे नॉट अप्रूव लिख कर आया है, आप हो सकता है हम बातें करें, उस समय मैं आपको बता दूं कि क्या कमी है कि आपको नॉट अप्रूव लिख के आया है, ठीक है, नॉट इन मैसेज। तो यही सब बातें होगी आपको, लेकिन जो आपको काम करना है वो फ्लेक्सिबल है। आप रात के 12 बजे कर रहे हैं, दिन के 12 बजे कर रहे हैं, सुबह 5 बजे कर रहे हैं, करके आपको सबमिट करना है, दैट इज फ्लेक्सिबल टाइम। हमारी मीटिंग का टाइमिंग 8:30 to 9:30 होगा, वो फिक्स है। ठीक है, श्रेया। अभी जो हम रिसर्च करेंगे तो उस डेटा को हमको एक डायरी या फिर नोटबुक में ही कंपाइल करना है ना? ये रिसर्च जो आप कर रहे हो, ये आप अपनी लर्निंग के लिए कर रहे हो कि आपको रिसर्च में टाइम कितना लग रहा है, केवल इसके लिए कर रहे हो। उसके बाद तो आपको टाइम बाउंड रिसर्च दिया जाएगा। ठीक है, टाइम बाउंड रिसर्च का यस सर। मतलब हो गया कि आज काम दिया गया, आज आपको सबमिट करना है। ठीक है, रील देखना, रील यस। बनाना आजकल के जेनेक्स की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है, बड़ा आप लोग को मजा आता है। हम इसे, हमारी इंटर्नशिप भी इसी पे, तो देखते हैं हाउ हाउ गुड यू पीपल आर, लेट्स सी। ठीक है, और एनी अदर क्वेश्चन? यस प्रीतिश। Sir, like you are again mentioning the word reels. So you want us to watch the short videos or the longer ones in YouTube? आपको देखना है। अब कुछ लोग होते हैं एक 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 मिनट वाली 50 देख के आपको, मुझे तो कंटेंट से मतलब है, आप एक एक मिनट वाली 50 देखें या 10-10 मिनट वाली 5-6-7-8 देखें, 10 देखें, कंटेंट आपको मिलना चाहिए। कैसे मिलता है वो आपके ऊपर होगा क्या, 4 दिन देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि नहीं, ये छोटे छोटे तो केवल सेंसेशन जगा रहे हैं, इससे कुछ हो नहीं रहा है, अल्टीमेटली बड़े वालों में ज़्यादा कंटेंट, तो आपको समझ में आएगा। दैट्स टोटली अपॉन यू। नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चन? आई होप जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे उन सब का मैं आंसर दे पाया। ऑल द बेस्ट। मैं आप लोगों का फिर दोबारा वेलकम करता हूँ एडुट्री पे, और मैं प्रॉमिस करता हूँ 7 दिन में आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, और ये लर्निंग आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। ये आपके लाइफ को में कुछ न कुछ एडिशन करेगी। जब आपको इंटरव्यू दे रहे होंगे, जब आपके एडमिशन की बारी आएगी, जब आप किसी जगह जॉब के लिए एडमिशन ले रहे होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपको क्या डिफरेंस आया आपके लाइफ में आफ्टर ज्वाइनिंग दिस इंटर्नशिप। लोग कहते हैं हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। सबको, 50 लोगों को बराबर मिलेगा। अब उस प्लेटफॉर्म को कौन यूज करेगा अपने फेवर में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइफ में एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं, जो उन एक्सक्यूजेस को तोड़ के मरोड़ के आगे निकल जाता है वही सक्सेसफुल होता है। जो एक्सक्यूजेस देता है वो क्यों है, मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, इंटरनेट नहीं है, टाइम नहीं है, ट्यूशन है, कुछ भी कुछ होंगे आपके लाइफ में, सबके लाइफ में होते हैं। उन्हीं एक्सक्यूजेस से आगे निकलना है। मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ, मेरे पास भी विंटर ब्रेक हो रहा था, मैं भी चाहता था इस विंटर ब्रेक को मैं छुट्टियां मनाने फैमिली के साथ जाता, लेकिन मैं हर विंटर ब्रेक में, हर समर ब्रेक में कुछ डिफरेंट करता हूँ। वो मेरे को आगे लाइफ में, मेरे करियर में ग्रोथ दे रहा है, मेरी लाइफ ग्रो हो रही है। मेरे साथ के लोग हैं, घूमने चले जाएंगे अभी विंटर ब्रेक में। ये मेरा काम करने का तरीका है। आपको अपना देखना है, सोचना है कि आपको लाइफ में क्या करना है, कितना आप ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, कितनी हैप्पीनेस चाहते हैं, कितनी रिकग्निशन चाहते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस चाहते हैं। वो पूर्णतया आपके काम पे डिपेंड करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि आप क्या स्ट्रीम लेंगे, क्या सब्जेक्ट लेंगे, कौन से कॉलेज में जाएंगे, कौन सी कंपनी में जाएंगे, इससे आपकी लाइफ बेटर होती है। मैं फिर बता रहा हूँ, आप क्या करेंगे इससे आपकी लाइफ बेटर होती है, कैसे करेंगे उससे आपकी लाइफ बेटर होती है। बाकी लाइफ को बेटर करने का कोई तरीका नहीं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप जिस एक्सपेक्टेशन से आपने ज्वाइन किया था आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। थैंक यू। Sir, थैंक I यू have सर। a doubt. यस प्लीज। Sir, so I choose in courses that is CA and BCom.
तो जब मैंने मतलब सर्च किया तो आईसीएआई की 3 एग्जाम्स होती है जो सीए स्टूडेंट्स को देनी होती है, दैट इज सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल्स। सो बीकॉम के हम चूज किया है, तो फिर बीकॉम मतलब वो नॉर्मली हम कर सकते हैं क्योंकि मेन फोकस सीए एग्जाम पे होता है और बीकॉम सारा कवर हो जाता है सीए एग्जाम में। आपने सीए एज अ कोर्स सर्च किया या सीए एज एन एग्जाम कवर किया या सीए एज अ कॉलेज कवर किया, पहले ये मुझे बताओ। सीए एज अ कोर्स। कोर्स। तो बस सीए एज अ कोर्स शुरू किया, तो आपको बस क्या ध्यान रखना है, सीए की एलिजिबिलिटी क्या होती है। सीए में जाने के लिए क्या एंट्रेंस देना पड़ता है या मार्क्स के बेसिस पे होता है, सीए का कॉलेज कौन कौन से हैं, क्या है या कोई एक ही इंस्टीट्यूशन इंडिया में वो कराता है, सीए के क्या लेवल्स होते हैं, सीए करने के बाद हमारा करियर क्या होता है, प्लेसमेंट क्या होता है, ये आपका रिसर्च होना चाहिए। जब आप बीकॉम की बात करते हैं, अगेन ये कोर्स है, बीकॉम क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसके कौन कौन से कॉलेजेस हैं, इसको करने के बाद क्या करियर ऑप्शंस हैं, ये आपका सर्च का पार्ट होना चाहिए। ये 2 अलग अलग कोर्सेज है, ठीक है। एनीवन एल्स? थैंक यू वेरी मच एवरीवन। वी विल मीट ऑन 23rd शार्प एज कितने बजे? 8:30। यू हैव टू बी प्रॉपरली ड्रेस। आज तक हम अनऑफिशियल ड्रेस में थे, 23rd के बाद हम ऑफिशियल ड्रेस में विद कैमरा ऑफ और ऑन। जल्दी बताओ ईशा, कैमरा ऑफ और ऑन? सर ऑन। क्या ये ड्रेस चलेगी जो भी आपकी है? सर This is for everyone. We have to be properly formally dressed, pen paper with you, officially। लगे कि आप जॉब कर रहे हैं, लगे कि आप एक कंपनी की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वो आपको भी कॉन्फिडेंस देगा, आपको भी अच्छा लगेगा। यू विल फील जैसे आप एमयूएन में तैयार होकर बैठते हैं, अच्छे से तैयार होकर बैठेंगे, अच्छे से फॉर्म में बैठेंगे, इट विल हेल्प यू, वो आपके लिए अच्छा होगा। योर लर्निंग विल बी मच मच मच। जब आप सबसे पहले हमारी लर्निंग के लिए हमारी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Thank you. Thank you very much.